क्लास 11th ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਟ 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ 99 ਜਾਂ 98 ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਵੀਕ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ 11th ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟਫ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਲਾਸ 12th ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੇ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ PSCP ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ 11th ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਲਾਸ 11th ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖ ਲਈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਾਸ 12th ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਪੇਡ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, YouTube ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਂ BSc ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬਈ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਫॉर एग्जाम्पल मेरा नाम जशन है तो मैं कमेंट्स की लिखूंगा जशन प्रेजेंट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ 11 ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ 12 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਫ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸਰ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਰ ਹੈ। आई होप सबने कमेंट करता 2 मार्कर। तो की ये फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं इसको मेजर कर पा रहा ना कि मेरे हाथ च कितने मार्कर्स है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी की होंदी है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ਇਹੋ ਜਿਹੀ क्वांटिटीज जिन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪਾਈਏ। ਸਰ ਦੀ ਨੁਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ। ਨੁਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈंने ਬੋਲੀ 2 ਕੀ ਹੈ? ਨੁਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ। 2 ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨੁਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ। ठीक है सर जी, न्यूमेरिक वैल्यू है। जिवें 2 किलो टमाटर, 10 किलो टमाटर, 20 किलो प्याज, 20 किलो गंढे, ठीक है, इस टाइप की चीज़ां हो गया ना। तो इन्हां दे विच जिहड़े 2 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 100 किलो टमाटर, 100 किलो कुछ भी ले लो, 2 लीटर दुध दे दो। तो इन्हां विच जिहड़ा 2 आ गया या फिर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨੁਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ kg। 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ, 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ, ਤਾਂ kg ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਯੂਨਿਟ ਹੈ। kg ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪਾਓ।
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ numeric value and unit ਦੀ form ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ then that is known as physical quantities। ਤਾਂ ਦੇਖੋ the quantities which can be measured and can be written in form of numeric value। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ numeric value ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਡਿਰਾਈਵਡ। ਸਰ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਡਿਰਾਈਵਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ABCD ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕ ਖ ਗ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ABC ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਤੋਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ABCD ਤੋਂ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕ ਖ ਗ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ 11 12 ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ABC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਰੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲੈਂਥ, ਥਰਡ ਹੈ ਟਾਈਮ, फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ, ਫਿਫਥ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਲ, ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਸੈਵਨਥ ਫਿजिकल क्वांटिटी है ਤੁਹਾਡੀ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बस आ 7 फिजिकल क्वांटिटीज तो याद करनी है, हुणे ही याद करा देना। मास लेंथ टाइम ये तो तीनों है क्लास 11th वास्ते, ये तीनों क्वांटिटीज है क्लास 11th दी, बहुत इंपॉर्टेंट। हुण सर मैनू सारे जने आए दसो मास नूं आपां रिप्रेजेंट करांगे M नाल, काहदे नाल रिप्रेजेंट करांगे? M नाल, ठीक है। मास नूं काहदे नाल रिप्रेजेंट करांगे? M नाल, ठीक है। लेंथ नूं आपां रिप्रेजेंट करांगे L नाल, ठीक है सर जी। टाइम नूं आपां रिप्रेजेंट करांगे T नाल। करंट नूं वैसे रिप्रेजेंट करदे A नाल। ये +2 दी है, करंट तुसीं +2 विच डिस्कस करांगे, टैंपरेचर तुसीं +2 विच प्रॉपरली डिस्कस करोगे, वैसे +1 च भी यूनिट 7 दे विच आ जांदा हुंदा है, ठीक है। देन आंदा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। पहला चैप्टर ही है तुहाडा की नाम है, पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। 7th ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਕੈਂਡੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ 3 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ M ਨਾਲ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ L ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ T ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ ਮਾਸ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? kg। ਸਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਚ। करंट तो एम्पीयर नाल शो, एम्पीयर हुंदा इनदा वैसे तो की नाम है एसआई यूनिट। टैंपरेचर दा केल्विन हुंदा इनदा कैंडेला एंड इनदा मोल, ठीक है। समझ आ गया। हुण आपां करदे आ डिराइव्ड। डिराइव्ड की हुंदा सर जी? डिराइव्ड मतलब किसी चीज तो डिराइव होके आना। एहो जी फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो डिराइव होके आ रही हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? JASHAN। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पर जदों मैं सारे इकट्ठे करते JASHAN प्रॉपरली लिखता तो वो की बन गया तुहाडा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इस नाम दे विच सारी फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ के बन रही हैं। तो डिराइव का मतलब होंगे जो किसी चीज तो बन के आवे कोई चीज, जो कोई चीज किसी फंडामेंटल चीज तो बन के आवे तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की है एहो जी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो बन के आउंदियां ने। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो सर जी, जिवें वेलोसिटी वेलोसिटी की है वेलोसिटी। अरे चलो अगली स्लाइड से डिस्कस करते हैं, इन्हों आप ब्रीफ च पढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नु। सिलेबस विच भी तुहाडे फंडामेंटल याद होगी। फंडामेंटल की है मास, लेंथ, टाइम, ये तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तुहाडे हुणे टिप्स से याद होनी चाहिए। मास नु एम नाल शो करदे, एम नु आपां केजी नाल, लेंथ नु आपां एल नाल शो करदे, एल नु आपां एम नाल, सॉरी मीटर हुंदा है एसए यूनिट, टाइम नु आपां टी नाल शो करदे, ये एसए यूनिट सेकंड है। ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे फॉर योर नॉलेज ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी। टेंशन ना लो, नोट्स वगैरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ 11 12 ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ एंड बहुत जल्द अब अलग कर देंगे। ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पा दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आ सारे नोट्स थी। हुण आप अगली स्लाइड के उत्ते डिस्कस करते हैं एक तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नू, फंडामेंटल इस स्लाइड ते खत्म हुंदा है। तुसीं होर वधिया समझोगे डिराइव्ड नू जदों आप अगली स्लाइड ते जावांगे। भाई देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज सर जी जिन्नियां भी हुण तुहाडे सामने फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही हैं ये सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है सर जी इन्नी सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज याद करनी है। अरे याद करनियां नहीं, याद करवा दूंगा, आए बोलूंगा मैं तब। देखो यार डिराइव्ड का मतलब होंगे किसी चीज तो बन के आना, उन्होंने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी कि पूरी फिजिक्स विच जिहड़ी 7 फिजिकल क्वांटिटीज मैं बोलियां सी, मास, लेंथ, टाइम टू टाइम याद करते चलो 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 जल्दी बोलो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल, उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज नूं छड्ड के जिन्नी भी फिजिकल क्वांटिटीज तुसीं पढ़ोगे वो सारियां डिराइव्ड है। मतलब ये उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज तो बन के आई हैं, या तो उन्होंने चाहे डिवाइड करके बन के आउण, चाहे मल्टीप्लाई करके बन के आउण, चाहे किवें भी, पर ये सारी चीज़ां ये सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज नूं या मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करके बन के आई हैं। ठीक है, हुण देखो हुण अपने को नवा फॉर्मूला नवा चीज़ आती है विच इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूलाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आए मान लो यार डायमेंशनल फॉर्मूलाज जिन्हों नहीं आते, डायमेंशन फॉर्मूलाज जिन्हों नहीं आते वो भुल जाओ। 11वीं 12वीं मैडिकल नॉन मैडिकल करन तो कदे भी 11वीं 12वीं की फिजिक्स नहीं होंगी। यानी कि डायमेंशन फॉर्मूलाज +2 विच भी ईवन BSc MSc करोगे ना उत्थे भी डायमेंशन फॉर्मूलाज कम होने, तो हुणे ही डायमेंशन फॉर्मूलाज को स्ट्रॉन्ग कर लो। डायमेंशन फॉर्मूलाज बनाने आप। ठीक है, मान लो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला की हुंदा है, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ डिस्टेंस ना, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड की हुंदी है, स्पीड हुंदी है सर जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला ही हुंदा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की है, लेंथ है, डिस्टेंस की एक तरह लेंथ है ना, लेंथ लिए की यूज करते हैं एल। टाइम टाइम तो सिंपल सा टी नाल शो कर दिया, बस यही है थोड़ा डायमेंशन फॉर्मूला। सर जी दोबारा स्पीड का फॉर्मूला होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला की होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुण देखो डिस्टेंस की है एक तरह तो लेंथ है ना, एक तो डिस्टेंस की है इत्थों मान लो आप बोर्ड था इत्थों तो लेके इत्थों तक का डिस्टेंस की होएगा, ये दी लेंथ होएगी इस बोर्ड दी। जे मैं इत्थों तो लेके इत्थों तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं की करूंगा, लेंथ मेजर करूंगा ना, का दे विच मेजर करूंगा, मीटर्स विच। तो मैं डिस्टेंस नु एल नाल शो करता, एल की अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम टाइम दा सिंपल टी। हुण देखो कुछ ना बेसिक्स है मैथ दे, कुछ बेसिक्स है जो मैं पढ़ाना भुल गया बट हुण पढ़ाऊंगा। जदों देखो डिवाइड जो पावर आप ऊपर लेके जानी है, डिवाइड विचों कोई भी चीज ऊपर लेके जानी है तो एल की पावर तो 1 है, एल की लिखना है जरूरी है डायमेंशन फॉर्मूलाज विच। तो डायमेंशन फॉर्मूलाज दे विच की करना है, उन्होंने एक कुंडी ब्रैकेट्स विच पा देने, उन्होंने एक कुंडी ब्रैकेट्स विच, इहनूं क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते। डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी चीज़ का जो लिखना है तो उन्होंने एक क्लोज्ड ब्रैकेट विच पाना है, ये याद कर लो, ये जरूरी है। तो L1 ताई हुण टेम्परेचर डिवाइड विच है,
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। मतलब मान लो यार टी ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/t 1/t ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ t ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੁੰਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ t ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ t ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਬਈ आई होप इन्ना तो पता ही होगा कि जो आप पावर नीचे कोई चीज पई है ऊपर लेके जाना यानी कि न्यूमिनेटर च लेके जाना है तो उनकी जिन्नी पावर है उनके मूहरे माइनस लगा देना सिंपल पावर तो पता की होंगी है जी आ लिखी हुई है ठीक है टी दी पावर 2 सी इन्हों मैं ऊपर लेके जाना सी टी दी पावर कितनी होगी -2 ठीक है इन्ना क आंदा होगा तो आप हुण इत्थे भी आई कि टी दी पावर 1 सी इन्हों ऊपर लेके गया तो टी दी पावर -1 वेलोसिटी वेलोसिटी की होंगी है सर जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सर जी डिस्प्लेसमेंट अगेन डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होगी एक तरह तो डिस्प्लेसमेंट भी की है लेंथ है डिस्प्लेसमेंट की होंगे शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस की होंगे लॉन्गेस्ट पाथ तो ये भी एक तरह तो डिस्प्लेसमेंट भी की है लेंथ ही है टाइम अपना टी है तो L1 t -1 L1 t -1 डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्लोज ब्रैकेट एक्सेलरेशन की होंगी है एक्सेलरेशन होंगी है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन की होंगी है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हुन सर जी वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप अरे वाह वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर पे है वेलोसिटी का फॉर्मूला है L1 t दी पावर -1 टाइम का फॉर्मूला T1 हुन इहनूं देखदे हां देखो देखो कुछ चीज़ां ने समझा रहा मान लो ए दी पावर m है ते ए दी पावर नीचे n है ए दी पावर m है ते ए दी पावर n है दोनों का बेस सेम है बेस की होंगे ए की है तुहाडा बेस है ए की है तुहाडा बेस है m ते n की है पावर्स है ए की है तुहाडा बेस है m ते n की है पावर्स हुण दोनों का बेस सेम है ते जदों बेस सेम होवे ते पावरां डिवाइड विच होण बेस सेम होवे पावरां डिवाइड विच होण तां उहनूं आपां ऐ लिख सकदे हां पावरां की हो जांदियां ने माइनस हो जाती है मतलब सर जी बेस सेम होवे पावरां अलग अलग होण बेस सेम होवे पावरां अलग अलग होण तां तुसीं की करना है पावरां नूं माइनस कर देने पावरां नूं माइनस कर देने यही सर जी प्लस ते यही सर जी मल्टीप्लाई दे केस विच आ जाए फिर की करना है ये तो समझ आया ना कि जो बेस सेम है तो पावरां नूं की कर देना माइनस पर मान लो अपने कोले ए दी पावर m है ते ए दी पावर n है हुण ए की ने मल्टीप्लाई च ए की हैगी मल्टीप्लाई च उत्थे डिवाइड विच सी इत्थे मल्टीप्लाई च बेस सेम है तो पावरां नूं की कर देना गा तुसीं सिंपल जोड़ देना है हुण मैनूं जल्दी दसो जे डिवाइड विच है ते बेस सेम है तो पावरां माइनस जे मल्टीप्लाई विच है तो पावरां ऐड सिंपल समझ गए भाई हुण इत्थे भी आई करना है देखो टी देखो इत्थे भी टी है इत्थे भी टी है तो हुण देखो बेस सेम है ऊपर नीचे बेस सेम है पावरां बेस सेम है डिवाइड विच है तो पावरां की हो जाणगियां माइनस हो जाणगियां बेस सेम है ते पावरां अलग अलग है ते डिवाइड विच है तो पावरां की हो जाणगियां माइनस यानी कि -1 ठीक है -1 ਇਹਦੇ ਕੋਲ -1 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ -1 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਰੀ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ -1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -2 -1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ L1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 जो कि है एक्सेलरेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ठीक है जी समझ आया अगे चलो फोर्स मोमेंटम की हुंदा है मास इनटू वेलोसिटी जिन्हों नहीं पता तो मैं दस देना मोमेंटम हुंदा है मास इनटू वेलोसिटी हुण मास सर जी मास नूं किहदे नाल शो करदे सी m नाल अच्छा सर जी मास नूं आपां m नाल शो करदे तां m दी पावर 1 अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला सर जी ऊपर देख के ऐसे ऊपर आ पिया L1 t -1 ठीक है जी हुण इहनूं आपां लिख सकते हैं मल्टीप्लाई च है ना तो m दी पावर 1 L दी पावर 1
टी दी पावर -1। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਟੈਂਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਫੋਰਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ। ਫੋਰਸ, ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਮਾਸ इनटू एक्सलरेशन। मास इनटू एक्सलरेशन। मास सर जी मास हुणे ऊपर कीता सी जिन्हों आपां लिखदे m नाल, m दी पावर 1 नाल। एक्सलरेशन सर जी हुणे ऊपर करके आ पिया एक्सलरेशन दा फार्मूला जो कि है L1 t दी पावर -2। हुण इहनूं आपां लिख सकदे हैं फाइनल फार्मूला m1 L1 t दी पावर -2। एक ही आ गया थोड़ा फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मुंह जबानी याद कर लो। 5 बार बोलोगे सारे जने, m1 L1 t -2, 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 m1 L1 t -2। सब तो ज्यादा यूज्ड डायमेंशन फार्मूला फोर्स का होंगे। टेंशन, टेंशन भी पता की होंगी है, टेंशन की होंगी है। कदे ना तुसी रस्सी देखिए, रस्सी नाल कोई चीज बंद हो, रस्सी नाल कोई चीज बंद हो। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर रस्सी नाल बनया होया है, तो जिहड़ा ये मार्कर रस्सी दे उत्ते ना एक फोर्स लगा रहे, तो टेंशन की एक प्रकार की फोर्स ही होंगी है जो एक रस्सी दे मतलब हैंगिंग दे विच लगदी होंदी है। तो टेंशन भी की है, एक प्रकार की फोर्स ही है, एक प्रकार की फोर्स ही है, टाइप ऑफ फोर्स है। तो इहदा डायमेंशन फार्मूला भी की होएगा, फोर्स वाला ही होएगा, यानी कि m1 L1 t -2। वर्क, वर्क की हुंदा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की हुंदा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर जी फोर्स का फॉर्मूला तो हुणे करके आए सी जो कि सीगा m1 L1 t -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कल्ली हुए तो L1। हुण देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावरां की हो जाएंगियां ऐड। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई विच है। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई दा साइन है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई दा साइन है तो पावरां की हो जाएंगियां ऐड हो जाएंगियां। तो फाइनल फार्मूला आ रहा है m1 L दी पावर 2 t दी पावर -2 जो कि है तुहाडा वर्क दा फार्मूला, जो कि है तुहाडा वर्क दा फार्मूला। सिंपल। एनर्जी, एनर्जी भी, एनर्जी का भी फार्मूला वर्क वाला ही है, तुहाडा काम सौखा करता। एनर्जी का भी फार्मूला वर्क वाला ही है, यानी कि m1 L2 t -2। पावर, पावर की हुंदा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कि पावर की है वर्क पर यूनिट टाइम, कि तुसी कितना कम कर पा रहे हो किसी एक गिवन टाइम च। वर्क हुंदा है m1 L2 t -2, टाइम हुंदा है t1। हुण देखो दोबारा तो पावरां से सॉरी बेस सेम, बेस सेम तो पावरां की हो जाएंगियां ऐड। बेस सेम तो पावरां की हो जाएंगियां तुहाडियां ऐड हो जाएंगियां, पावरां की हो जाएंगियां तुहाडियां ऐड होणगियां। सॉरी 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 बेस सेम ते पावरां की है डिवाइड विच है, बेस सेम ते बेसिस डिवाइड विच, तो पावरां की होणियां सी माइनस, तो -2 होंदी ते आ वाली नीचे वाली पावर भी माइनस होगी, -2 -1 तो की आ रहा -3। यानी कि फाइनल फार्मूला की आ रहा है अपने पावर का, फाइनल फार्मूला पावर का आ रहा है m1 L2 t दी पावर -3 की आ रहा है m1 L2 t दी पावर -3। एरिया, एरिया की हुंदा है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया की हुंदा है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का मेजर होंदी है मीटर्स च, ब्रेथ भी का मेजर होंदी है मीटर्स च, तो डायमेंशन फार्मूला की आ जाऊगा L², यानी कि L दी पावर 2। वॉल्यूम, वॉल्यूम होंदी है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम की होंदी है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों ही का मेजर होंदे मीटर्स विच, तो इहदा डायमेंशन फार्मूला की आ जाएगा L3। डेंसिटी, डेंसिटी होंदी है मास पर यूनिट वेलोसिटी, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होंदी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की है सर जी m1, वॉल्यूम आप ऊपर करके आए सी जो कि सी L3, तो फाइनल फार्मूला क्या है m1। L दी पावर ऊपर लेके जानी है तो पावर की हो जाती है माइनस। प्रेशर, प्रेशर हुंदा तुहाडा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फार्मूला साढ़े मूँह जवानी याद है सर जी m1 L1 t दी पावर -2। एरिया,
एरिया हो गया एल स्क्वेयर, एरिया हो गया एल स्क्वेयर। बेस सेम है, पावरा की होनी सी माइनस, बेस सेम है, पावरा की होनी है माइनस, क्यों? क्योंकि डिवाइड विच है। तो 1 -2 तो की आ रहा है -1, 1 -2 तो की आ रहा है -1। तो आप ਇਹਦਾ फाइनल फार्मूला की लिख सकते हैं? ਇਹਦਾ फाइनल फार्मूला की आएगा m1 l ਦੀ ਪਾਵਰ -1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है। सौखा करता सर जी, यानी कि L1 t दी पावर -1 t दी पावर -1 की सही है? नहीं, एक आधा फार्मूला सी वेलोसिटी दा, इत्थे की आना है t दी पावर -2। सरफेस टेंशन, भाई नेक्स्ट आंदा अपना सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की होंगे सर जी? फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स होंगे सर जी m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ, लेंथ ना लेंथ की होगी कैंसल, लेंथ ना लेंथ की होगी कैंसल। वैसे भी करके देख लो, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, तो पावरा तो माइनस ही होने क्योंकि बेस सेम है तो डिवाइड च है, तो आंसर 0 आ रहे। तो किसी भी चीज की जो पावर 0 है, किसी भी चीज की जो पावर 0 है तो 1 है, तो 1 का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होंगे। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन फार्मूला कदे भी नहीं होंगे। 1 का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं, क्यों? 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। 5 का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं, 10 का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं, 12 मतलब कोई भी नंबर ले, कोई भी नंबर 6 7 8 10 12 15 17 18 कोई भी नंबर है, उन्होंने चो किसी का भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होंगे। तो यह फाइनल फार्मूला की आ रहा है अपना सरफेस टेंशन का, जो कि आ रहा है m1 t-2। एंगल, एंगल एक डायमेंशनलैस क्वांटिटी है जिदा डायमेंशंस होंगे m0 l0 t0, m0 l0 t0। ठीक है, एंगल की तरह कुछ होर भी डायमेंशनलैस क्वांटिटीज है, जिवें स्ट्रेन, स्ट्रेन एक डायमेंशनलैस क्वांटिटी जो पढ़ोगे तुसी 7th यूनिट विच। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तुहानूं कुछ याद होनी चाहिए क्वांटिटीज जो डायमेंशनलैस है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो यार सब ने एक फार्मूला पढ़िया होगा जो कि सीगा F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। जिन्होंने नहीं पढ़िया तो भाई बहुत ज्यादा वो ना हो कि असी सानू नहीं आउंदा, कोई नहीं, यूनिट 6 ग्रेविटेशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ, g ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ g ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? f into r स्क्वेयर अपॉन m1 m2। कुछ नहीं किया मैंने, की किया जी कली इधर रख ली, बाकी सारा इधर ले गया। m1 m2 मल्टीप्लाई च है, नीचे जाके डिवाइड च, ते r स्क्वेयर डिवाइड च सी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई च। तो हुण अपने कोल f दे डायमेंशनस की सीगे? m1 l1 t-2 r स्क्वेयर, यानी कि लेंथ, यानी कि लेंथ थोड़ा इधर कर दिंदे हैं ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए। लेंथ, लेंथ के डायमेंशनस हुंदे l स्क्वेयर, m1 m2 यानी कि मास, मास का हो गया थोड़ा, देखो m1 ते m2 मल्टीप्लाई च पावर ऐड होके m स्क्वेयर ही बनाउणगी। हुण देखो बेस सेम है तो पावरा की होनी है? ऐड होनी है। बेस सेम है तो पावरा की होनी है? तुहाडियां ऐड होनी है। सॉरी 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 भाई, माय मिस्टेक। बेस सेम है तो पावरा की होणगियां माइनस, क्यों? क्योंकि डिवाइड विच है। तो 1 चो 2 गए, 1 चो -2 गए तो m की पावर कितनी आ रही है? -1। 1 चो 2 गए तो m की पावर कितनी आ रही है? -1। करके देखो खुद। l, l का इधर बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो मल्टीप्लाई विच है तो पावरा की होनी है? ऐड, तो t की पावर -2 उदा ही। तो ये आ गया तुहाडा ग्रेविटेशनल का। ਇਹਦਾ डायमेंशन फार्मूला भी बहुत ज्यादा पेपरां विच पूछा जाता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे सेम प्रेशर वाले ही आ जाएंगे, यानी कि m1 l-1 t की पावर -2
नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला आंदा प्लैंक्स कांस्टेंट दा, जो कि हुंदा m1 l2 t दी पावर -1। सर जी किवें आया, ये याद ही करना पैना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हुंदी है 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी होंगी 1 टाइम, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है t दी पावर -1, ठीक है। आ डायमेंशन फॉर्मूला कुछ थोड़ी स्क्रीन उत्ते, इन्हों निगाह मारो, देखो समझ आया कि नहीं। वैसे आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ते सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो बन के आई ने। दूसरी गल, फंडामेंटल यूनिट की हुंदे ने, जेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दे नाल यूनिट लगदे हैं। फॉर एग्जांपल मीटर हो गया, एम्पीयर हो गया, सेकंड हो गया, एक ही है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। फिर आंदा डिराइव्ड फिजिकल यूनिट, जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज दे यूनिट्स है, उन्होंने आप डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स कहने हैं, ठीक है। हुण आप थोड़े जे होर डायमेंशन फॉर्मूला करते हैं, हाले तो कुछ भी नहीं है, थोड़े होर करते हैं, देन आप नेक्स्ट टॉपिक करनी चलांगे। नोट्स वगैरह टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिलणगे, दोबारा बोलता लिंक डिस्क्रिप्शन च ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट अपने को आंदा है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि आप ਜਿਹੜੇ यूनिट्स है वो किवें किवें मेजर करते हैं। सीजीएस सुने है ना, जिवें मास है, मास ਨੂੰ ਆਪਾਂ केजीज ਵਿੱਚ ਵੀ मेजर करते हैं, ग्राम्स ਵਿੱਚ भी मेजर करते हैं, तो वो चीज़ों ਨੂੰ किवें लिखांगे। तो भाई सब तो पहला आंदा सीजीएस, आई होप सबने सीजीएस सुनिया होगा। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜੀ लेंथ है वो मेजर होंदी है सेंटीमीटर्स ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ अपना मास है वो मेजर होंदा ग्राम्स विच, एंड जिहड़ा अपना टाइम है वो मेजर होंदा सेकंड्स विच। हुण तुसीं आखोगे सर जी तुहानूं किवें पता कि सीजीएस सिस्टम विच मास अपना ग्राम्स विच है, लेंथ इनदे विच है। तो देखो सी दा मतलब है सेंटीमीटर, जी दा मतलब है ग्राम, एस दा मतलब है सेकंड्स। फिर आंदा एफपीएस विच जिहड़ी लेंथ है वो मेजर होंदी है फुट्स विच, जिहड़ी अपनी मास है वो मेजर होंदा पाउंड्स विच। ये पाउंड्स तुहाडी करंसी वाला नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया साइड जिहड़ा पाउंड यूज होंदा वो वाला नहीं, ये अपना मास वाला पाउंड है। टाइम अगेन सेकंड विच। सुने कि आप लेंथ नूं फुट विच मेजर करते हैं, सुनते हैं ना। मैं बोर्ड लिया 6 फुट 4 फुट का 6 बाय 4 फुट का बोर्ड दे दो, तब लेंथ नूं मैं काहदे मेजर कर रहा फुट विच। 2 पाउंड का समान लैओ बाहरों, जिहड़े लोग बोलते बाहरले साइड, ते एफपीएस अपना फॉरन साइड यूज होंदा है, इत्थे नहीं यूज होंदा, फॉरन कंट्रीज यूज होंदा है एफपीएस सिस्टम। एमकेएस विच लेंथ मेजर हो रही है मीटर्स विच, लेंथ मेजर हो रही है मीटर्स विच, मास मेजर हो रहे केजीज विच, किलोग्राम इट मीन्स, ते टाइम मेजर हो रहे सेकंड्स विच। सर जी ठीक है, एमकेएस समझ आ गया। फिर एसआई की है, एसआई तुहाडा मॉडिफाइड फॉर्म है, एसआई की तुहाडा मॉडिफाइड फॉर्म है कादी एमकेएस सिस्टम दी, कादी एमकेएस सिस्टम दी, ठीक है जी। आपने सब तो पहला सीजीएस बारे पता किया। सीजीएस विच लेंथ मेजर होंदी है सेंटीमीटर्स विच, मास मेजर होंदा ग्राम्स विच, टाइम मेजर होंदा सेकंड्स विच। देन आ गया एफपीएस जो फॉरेन कंट्रीज यूज होंदा है, जिथे अपनी लेंथ मेजर हो रही है फुट्स विच, मास मेजर हो रहा है पाउंड्स विच, टाइम मेजर हो रहा है सेकंड्स विच। देन आप एमकेएस विच अपनी लेंथ मेजर होंदी है मीटर्स विच, मास मेजर हो रहा है केजीज विच यानी कि किलोग्राम्स विच, टाइम सेकंड्स। एसआई मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट, क्यों, क्योंकि एमकेएस सिस्टम की मॉडिफाइड फॉर्म में आप की बोलते हैं एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता होंगे, ठीक है। तो ये कर लो। हुण आप चलते हैं अपना अगला टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरफ। 3 एप्लीकेशन आती है, वो करके चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इन्ना छोटा चैप्टर है, बिल्कुल सर, इन्ना छोटा चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर जी एक ही बोलता है, ये आए बोलता है किसी भी फॉर्मूले विच, कोई भी फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल तुहाडी स्क्रीन के उत्ते 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो कि आप सेकंड यूनिट विच पढ़ांगे। v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला, तो
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ LHS ਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ RHS ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ LHS ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹੜਾ RHS ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ LHS ਤੇ RHS ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਨੰਬਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਨॉट। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ v = u + at। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? v ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, L1 t⁻⁻1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ LHS ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ RHS ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੱਢੀਏ। RHS ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? u ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ L1 t⁻1, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। a ਹੋ ਗਿਆ L1 t⁻2 ਇੰਟੂ t। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ t⁻1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ L1 t⁻1 ਸਿੰਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਲਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ, ਪਾਵਰਾਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਐਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ -2 + 1, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। -2 + 1 ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ? -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? L1 t⁻1। ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਐਂਡ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਨੇ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ 2 ਵਾਰ ਆਪਣਾ L1 t⁻1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਆਪਣਾ L1 t⁻1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਗਨੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? L1 t⁻1। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ LHS ਵੀ ਕੀ ਸੀ? L1 t⁻1। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ LHS ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ RHS ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਆਈ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਇੱਧਰ ਤਾਂ 2 L1 t⁻1 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਕੱਲਾ L1 t⁻1 ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ 2 ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅਰੇ 2 ਦੇ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ LHS ਤੇ RHS ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ v² - u² ਬਰਾਬਰ 2as। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। v² ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ L1 t⁻1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ L1 t⁻1 ਦਾ होल स्क्वायर बराबर है 2 तो अपना इग्नोर कर दोगे, 2 इग्नोर कर दिए क्योंकि वो की है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट दे कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। ए हो गया ਤੁਹਾਡਾ L1 t⁻2 ठीक है। S ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? S ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? S ਹੋ ਗਿਆ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ਇਹਨੂੰ सॉल्व करो तो L² t⁻2 माइनस L² t⁻2 बराबर है, पावरा सेम ने, बेस सेम है तो पावरा की हो जाएंगी ऐड, यानी कि L² t⁻2। हुण ये 2 बार लिखा जाऊगा, L² t⁻2, L² t⁻2 2 बार लिखा गया, बराबर है L² t⁻2
2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੱਟਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ l ਸਕੁਅਰ t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਹੈ l ਸਕੁਅਰ t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣਾ LHS ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ RHS ਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ डायमेंशनली करेक्ट है लिखना है स्टेटमेंट ये डायमेंशनली करेक्ट है ठीक है जी समझ आ गया कुछ नहीं करना LHS ਤੇ RHS ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ ਇਗਨੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ which will be conversion ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ then class ਖਤਮ ठीक है चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक करनी हमने आपने सीखा सीगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कि बोलता सी कोई भी फार्मूला जो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो दसदा सी है ना कि आप पता कर लेंगे सी डायमेंशंस तो कि फार्मूला करेक्ट है कि नहीं देखो अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स सर जी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या देखो आप 4 तरह के सिस्टम पढ़े सी CGS FPS MKS एंड SI तो सिस्टम्स मतलब कोई भी फॉर्मूले विच आए जरूरी थोड़ी है कि LHS ते RHS दे जेडे यूनिट्स और सेम होन तो ना सिस्टम दे यूनिट्स को सेम करने लिए अपन कुछ ना कुछ तो चाहिए ना मेरी गल समझ फॉलो कर रहे हो कि आप सिस्टम दे यूनिट्स को सेम करना है दोनों पासे LHS ते RHS तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ठीक है जी फॉर एग्जांपल 1 मीटर ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 10 × 100 ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ which is n1 u1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ n2 u2 ਦੇ सर जी n1 u1 n2 u2 की है n1 है ਤੁਹਾਡਾ numeric value u1 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ u2 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ CGS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇ n2 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ numeric value 2 numeric value according to CGS ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸੀ 1 ਮੀਟਰ बराबर है 100 सेंटीमीटर दे तो एक की है तो numeric value for SI मीटर की है SI यूनिट सेम 100 की है numeric value है पर कादे वास्ते CGS वास्ते सेंटीमीटर की है CGS दा यूनिट ਤਾਂ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਬਈ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ which is convert 1 ਨਿਊਟਨ ਟੂ ਡਾਇਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਜੂਲ ਟੂ ਅਰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਨਵਰਟ ਸਤੰਬਰ ਪੇਪਰ ਚ ਤਾਂ 99% ਸ਼ੋਰ ਆ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ टू डायन सर जी डायन ओवली नहीं भाई डायन की है फोर्स दे CGS यूनिट है न्यूटन की है फोर्स दे SI यूनिट हुण सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ which is n1 u1 बराबर है n2 u2 ਦੇ n1 की है 1 u1 की है न्यूटन 1 न्यूटन बराबर n2 ਆਪਾਂ फाइंड करना है n2 ਆਪਾਂ फाइंड करना है पर ये अपना डायन है ये अपना डायंस है ठीक है 1 न्यूटन मतलब फोर्स से डायमेंशंस की हो गए m1 l1 t -2 इंटू 1 बराबर है हुण डायंस की है CGS यानी कि आप फोर्स से डायमेंशंस लवांगे CGS च मास ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ सॉरी एक मेन चीज ਆਪਾਂ ने कटना की है n2 ਤਾਂ n2 ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1 n1 into u1 upon u2 ਦੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ n2 ਤੇ n2 ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ n2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨਾ n1 into u1 upon u2 ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ n2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈंने n1 यानी कि 1
n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 into u1 यानी कि SI यूनिट्स ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊਟਨਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ m1 l1 t-2 ਠੀਕ ਹੈ n1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਕਰਤਾ u1 ਇਟ ਮੀਨਸ SI ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ kgs ਵਿੱਚ u2 यानी कि CGS ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਕਾਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SI ਚ ਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ CGS ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਟੂ सेकंड्स अपॉन सेकंड ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ सेकंड अपॉन सेकंड 1 सेकंड अपॉन 1 1 ਨਾਲ 1 ਕੈਂਸਲ सेकंड ਨਾਲ सेकंड ਕੈਂਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ -2 ਹੋਏ ਚਾਹੇ 0 ਹੋਏ ਚਾਹੇ 1 ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ कैंसल होगा ना समझ रहे हो मेरी गल सेकंड नाल सेकंड कैंसल 1 नाल 1 कैंसल किसी भी चीज की पावर 1 की पावर -2 है वो की आऊगा 1 नहीं आऊगा तो मैं वो लिख नहीं रहा समझ गए हुण देखो 1 kg विच किन्ने ग्राम हुंदे ने 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम 1 मीटर विच किन्ने सेंटीमीटर हुंदे ने 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर कैंसल ग्राम नाल ग्राम कैंसल तो n2 का बराबर आ गया 3 0 आ पईयां 2 0 आ पईयां 10 इंटू 10 की पावर 5 दे मैं बोल सकता 10 की पावर 5 दे ठीक है n2 का बराबर आ रहा है 3 0 आ पईयां 2 0 आ पईयां 10 की पावर 5 हुण देखो n2 की सी n2 तो आ गया सर जी 10 की पावर 5 ये आ गया अपने को n2 की वैल्यू विच इज 10 की पावर 5 इत्थे पुट कर दिए n1 किन्ना सी 1 u1 की सी न्यूटन n2 किन्ने 10 की पावर 5 u2 किन्ने डायन तो आप ऐ बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन विच किन्ने डायन्स हुंदे ने 10 की पावर 5 डायन्स हुंदे ने फॉर एग्जांपल जिवें 1 मीटर विच किन्ने सेंटीमीटर हुंदे ने 100 सेंटीमीटर हुंदे ने ना इहनूं आप ऐ भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर सेम बस उवें लिखा होया है कि 1 न्यूटन विच किन्ने डायन हुंदे ने 10 की पावर 5 जो कि इस फॉर्मूले तो आया समझ आया जो नहीं समझ आया दोबारा बैक जाके देख के आओ इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स का क्वेश्चन 101% थोड़े सितंबर पेपर च आएगा एक तुसी होमवर्क लेके जाओ भाई होमवर्क कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग्स ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन की है कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग्स सेम है सारा कंसेप्ट इत्थों शुरू कर लियो डायन की जगह ते जूल आ जाएगा न्यूटन की जगह ते जूल आ जाएगा ते जूल कादे यूनिट हुंदे ने वर्क दे या फिर एनर्जी दे ते इत्थे आपां वर्क या फिर एनर्जी दा डायमेंशन फार्मूला लेके आ सारी चीज बदलूगी ते इहदा आंसर आ रहा होगा 1 जूल बराबर आ जाऊगा 10 की पावर 7 अर्ग दे इहदे बराबर आऊगा इहदा आंसर इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ठीक है समझ आया ना जे नहीं समझ आया प्लीज एक बार बैक जाके दोबारा देख लो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओंदे करनी चलते हैं लास्ट टॉपिक है भाई इस चैप्टर का ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ LHS ਤੇ RHS ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਨਵਰਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤੀਜਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ मैं मजाक नहीं कर रहा यूनिट 7 ए फॉर्मूले के उत्ते चैप्टर है मोशन इन फ्लूइड्स सॉरी मोशन इन सॉलिड वो वाला चैप्टर है तुहाडा की नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड उत्थे काम आना है इस टॉपिक यही टॉपिक उठ के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विच काम आएगा फिर 14th चैप्टर वेव्स उत्थे भी यही टॉपिक ने काम आना गा तो यह टॉपिक जे कमजोर रह गया +1 के फिजिक्स के अगे चैप्टर +2 के अगे चैप्टर्स बहुत औखे होंगे फॉर्मूला बनाना सीखांगे आप देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है समझ लो डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स आप हुण फॉर्मूला बनाना किहदे लई सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन विच पढ़ांगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाना है ठीक है विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m
सब तो पहला ये चीज डिपेंड किते कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है मास m, m की है मास ऑफ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, फिर डिपेंड करती है वेलोसिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ v, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज r, यानी कि तीन चीजों के उत्ते अपना सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड कर रहे हैं, मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r। बच्चों को समझ नहीं आता समझ लो बई, ठीक है। हुण आ देखो इनू इक्वेशन नंबर 1, इनू इक्वेशन नंबर 2, इनू इक्वेशन नंबर 3 इमेजिन करना है, ये तुहानू समझाने लई। देखो फोर्स तीन चीजों ने डिपेंड कर रहे हैं, तो आप तीनों इक्वेशनों को कंबाइन करके आए लिख दिए mvr, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mvr। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ k ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ k। k ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, k ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ k ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। के ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, यानी कि ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ गए। फिर हुण देखो, हुण अपने को इक्वेशन रहेगी, फोर्स के यूनिट हुंदे ने, डायमेंशन फॉर्मूला हुंदा है m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। मास दे हुंदे ने m1, मास दे हो गए m1। वेलोसिटी हुंदी है l1 t-1, वेलोसिटी हुंदी है l1 t-1, ये मल्टीप्लाई से सारा कुछ। r रेडियस हो गया l1, रेडियस हो गया तुहाडा l1। हुण देखो बई, हुण आपां की करना है, मान लो आपां एक इत्थे स्टैप ले लैंदे आ, आपां m दी पावर a ले लैंदे आ, b दी वेलोसिटी पावर b ते रेडियस दी पावर c। तो मैं ये बोल सकदा, आप ये बोल सकते हैं m1 की पावर a है। एक मिनट इस स्टेप दे विच उलझोंगे, स्टेप नूं ना ईजी बनाओ। आपने की कीता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करता, मास की पावर a दे उत्ते डिपेंड कर रहा सी, तां m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b दे उत्ते डिपेंड कर रहे, वेलोसिटी की पावर b दे उत्ते डिपेंड कर रहे, तां l1 t1 की पावर b। देखो वेलोसिटी दी v है ना, वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला, रेडियस की पावर c दे उत्ते कर रहे l1 की पावर c। ठीक है, इत्थे तक समझ आया। खोलो बई ब्रैकेट नूं, m1 l1 t-2, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, बस इनू पावरां नूं b नाल मल्टीप्लाई करी जाना है, ते l की पावर c, m1 l1 t-2 बराबर है m की पावर a। बेस सेम तो पावरां की हो जाणगियां ऐड, बेस सेम तो पावरां की हो जाणगियां ऐड, यानी कि l की पावर a प्लस b ते t की पावर -b। इधर m ते इधर m दोनों पासे सेम है, तो इन्हां दी पावरां भी सेम होणगियां। जे बेस सेम ने, बेस सेम है तो बराबर है, तो इन्हां दी पावरां भी बराबर हो जाणगियां। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावरां भी बराबर हो जाणगियां। l इधर भी l है, इधर भी l है, तो इधर इस हिसाब नाल a प्लस b दे कादे बराबर आ रहे 1 दे, a प्लस b कादे बराबर आ रहे 1 दे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है अपनी, a माइनस b आएगा रे, a माइनस, ठीक है। अरे नहीं a प्लस c है ना, a प्लस c है, आई है ना, सही है। तो a प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले 1 आ गई। हुण आपां a की वैल्यू इत्थों पुट करिए, तो 1 प्लस c बराबर है 1 दे, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 0, c की वैल्यू कितनी आ रही है 0। t की देख लो बई, -b बराबर है -2 दे, -b है बराबर -2 दे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है जी, ठीक है। अरे मैंने गलती करती यार, देखो इतने b नहीं आएगा रे, b नहीं आएगा इत्थे, a प्लस c तो आना ही नहीं। हुण देखो अपने को इत्थों आ इक्वेशन तो आप हाले सॉल्व नहीं की, आ इक्वेशन सॉल्व करके b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्यों, क्योंकि इत्थे भी t है, इत्थे भी t है, पावरां इक्वेट करती तो माइनस नाल माइनस कैंसिल, b की पावर 2 आ गई। आ 2 इत्थे पुट करो, 2 प्लस c
बराबर है 1 दे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2 यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ रही है -1। हुण बच्चे की करते 90% बच्चे इत्थे ही बस ए बी सी की वैल्यू कटती गल खत्म नहीं। हुण इत्थे पुट करो बई, हुण इत्थे पुट करो तो पुट किवें करांगे फोर्स बराबर है एक तो के लिखो पहला के लिखो ए दी वैल्यू 1 है जे पावर पॉजिटिव है ए की सी मास तो ऊपर आएगा एम ऊपर आ गया क्यों क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो 1 है। बी दी वैल्यू आ रही है 2 बी की है वेलोसिटी यानी कि वी दी वैल्यू वी दी पावर कितनी है बी पावर कितनी है 2 तो ऊपर। सी दी वैल्यू आ रही है -1 सी दी वैल्यू -1 किसी चीज की पावर माइनस है इट मीन वो कितने आऊगा नीचे आऊगा ते आर दी पावर कितनी है -1 यानी कि 1 नहीं आऊगा नीचे तो अपने को फोर्स का फाइनल फॉर्मूला की बन गया के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों लिखा सी नू कल्ले नू नीचे क्यों लिखा क्यों क्योंकि आर दी पावर सी ते सी दी पावर माइनस आ रही सी माइनस का मतलब वो डिवाइड विच चली जाती होंगी तो 1 ओदी आंसर है। देखो समझ आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंदा हुंदा पेपर च यूनिट 7 जो कि है मोशन इन सॉलिड्स उत्थे बहुत कम आऊगा वेव्स चैप्टर विच बहुत कम आएगा +2 विच बहुत कम आएगा इस टाइप दे इस फॉर्मेट विच जे नहीं आंदा तो भाई दोबारा वीडियो बैक करके सुन के आओ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। हुण आपां सारे मिलते हैं भाई 11वीं वालों खत्म हुंदा तुहाडा फर्स्ट चैप्टर का लैक्चर इत्थे ही अटेंडेंस लवानी जरूरी है सारे नोट्स तुहानूं टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप च मिल जाएंगे माड़ा मैंने अपने नाम याद करा दो ताइयों अटेंडेंस बोल रहा कुछ मेरे बारे तुहानूं कुछ कमी लगी लैक्चर की जरूर दस्सो आई विल इंप्रूव ते मिलते हैं हुण आपां अगले नवे लैक्चर विच जिन्ना वधिया रिस्पॉन्स दोगे इस वीडियो ते उन्ना जल्दी तुहाडा अगला चैप्टर का 1 शॉट आएगा कि वैसे मैं 10 दिन मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाना केमिस्ट्री में सितंबर एग्जाम तो बाद तुहानूं पढ़ाऊंगा हले मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हले मैं कल्ली फिजिक्स पढ़ा रहा ठीक है। पहली यूनिट कंप्लीट हुंदी है अज ठीक है आई नो वो बहुत लेट लैक्चर है पर देर आए दुरुस्त नहीं ठीक है आई नो कोई गल नहीं एंड मिलते हैं आपां अगली वीडियो दे विच थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लैक्चर।